Good morning, students. How are you all? Hope so. You all are fine in your home, doing the given work. But as I again and again I am saying to you that watch the video, subscribe the channel, and give me the comment. If you are doing so, you write the yes, ma'am, according to the question or according to the video. Or if you have any difficulty related to the videos or the lectures, so definitely you send your queries also. With these comments I will improve my videos, and this one is beneficial for me, these feedbacks, to know about you ki how much you are utilizing this time for studies. Are you getting me? Fine. So again, the chapter 9, developing psychological skills. In the last video I told you about the term that one counseling, related to the meaning and the nature of a counseling पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन करा था. And I told you some myths related to a counseling. काउंसलिंग को लेके जो myths थे हमने उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करा था. So in the same manner, let's continue the topic. The topic related to the counseling is developing that one effective relationship. How we develop the effective relationship as a counselor. As you know, the counselor is in a two-way communication. Fine. जब हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है? two-way communication हो रहा है. In the same manner, counseling usually we can say related to the outcomes for the clients. In this way, the effective behavior change, the client taking a greater responsibility to developing a new insights, learning a new engage in a different environment. क्लाइंट क्या करता है? अपने बिहेवियर चेंजेस की कोशिश करता है, लर्न करने की कोशिश करता है इन अ डिफरेंट environmental method, and as well as the client making an effort to develop a more effective relationship because he want to overcome from the problem. In the same manner, some characteristics related to effective helper. If you want to be an effective helper, तो कुछ हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. वो कैरेक्टरिस्टिक है ऑथेंटिसिटी, सेकेंड वन इज़ अ पॉजिटिव रिगार्ड फॉर अदर्स, थर्ड one is the empathy, and then fourth one is the paraphrasing. You know about the paraphrasing. We already discussed about the paraphrasing. So let's start the first points. You know, being a trainer or a counselor or a helper, the counselor has a responsibility. The counselor has a big responsibility to do the work for the client benefit. Or the counseling itself a therapy which are effective in a manner of a client counseling क्या है? एक ऐसी थेरेपी है जिससे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होता है या फिर ज़्यादा पॉजिटिव रिगार्ड किसे मिलता है? Yes, the answer is client. To a large extent, however, the success of the counseling process depend on the skill. अगर हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? वो डिपेंड कर रहा है स्किल्स पे, नॉलेज पे, एटीट्यूड पे, पर्सनल क्वालिटीज़ पे. पर्सनल क्वालिटीज़ एंड बिहेवियर ऑफ अ काउंसलर आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ इफेक्टिव हेल्पर. द हेल्पिंग प्रोसेस. In this section, we will discuss about the four qualities, and that one is the authenticity, positive regard for others, empathy, and the paraphrasing. Firstly, we will discuss about the term authenticity पे बात करते हैं. You image a perception of yourself. आपने अपने बारे में कोई ना कोई परसेप्शन, कोई ना कोई नज़रिया होगा आपका अपने लिए, और वो क्या कहलाएगा? आई, मैं. आई एम अ गुड गर्ल. ये किसका परसेप्शन है? आपका अपने लिए है. तो इसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा है, एंड दैट वर्ड डिनोट एज अ आई, अ इमेज और अ परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ, जो आपने अपने लिए बनाया. उसके लिए हम किसको डिनोट कर रहे हैं? आई को डिनोट कर रहे हैं. द सेल्फ प्रिसीव्ड आई इज रिलेवेंट थॉट्स और आइडियाज़ और एक्शन एंड रिलेटेड टू योर लाइफ स्टाइल. आपकी जो भी लाइफ स्टाइल से है उससे रिलेटेड जो भी व्यूज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं, आपके एक्शंस हैं, उनको क्या वर्ड दिया है आपने? आई. दीज ऑल कम्युनिकेशन ऑफ आई टू अदर्स हु कम इन टू अ क्लोज कॉन्टेक्ट. यू शुड ऑल्सो नो अ बिल्ड अबाउट द परसेप्शन. आपके कॉन्टेक्ट में और भी जितने लोग आते हैं, डेफिनेटली वो आपके बारे में कोई ना कोई परसेप्शन रखते हैं, एंड दे ऑल्सो समथिंग कम्युनिकेट दिस इमेज टू यू. फाइन. एक तो आपका अपने खुद को लेके व्यूज़ हो गया, उसके लिए एक वर्ड डिनोट हो गया है आई.
I am a good girl, I am a good dancer, I am a whatever you are thinking about yourself, जो कि आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है. बट फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड टेल यू दैट what they like in you or dislike in you. Your teachers, your parents आपको प्रेज भी करते हैं, आपके टीचर्स आपको पनिशमेंट्स भी देते हैं. क्यों? आपकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, और आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं. सो whoever, जो भी, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके टीचर्स हैं, जो भी आपका एवोल्यूशन करते हैं, जो भी आपका मूल्यांकन कर रहे हैं बाय द पर्सन यू रिस्पेक्ट देम. चाहे आपके फ्रेंड्स आपके लाइक डिसलाइक्स बता रहे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स बता रहे हैं, चाहे आपके टीचर्स बता रहे हैं, फर्स्ट थिंग क्या है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है. कैसे? उनकी जो भी है वो आपसे रिलेटेड वैल्यूज़ बता रहे हैं. दिस कलेक्टिव जजमेंट बाय द पीपल, फैमिली से जो आपके लिए कलेक्टिव जजमेंट आया, फ्रेंड से जो आया, टीचर से जो आया, इफ़ यू रिस्पेक्ट दीज सिग्निफिकेंट थिंग्स, तो ये क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट अदर्स. आप दूसरों की दिए हुए व्यूज़ को क्या कर रहे हो? रिस्पेक्ट दे रहे हो. सिग्निफिकेंट अदर्स डेवलप इनटू अ मी, दिस अदर परसीव्ड मी इन द पर्सन दैट अदर्स परसीव यू टू बी. ये जो मैं, आई और मी के बीच का जो कॉन्टैक्ट है, एक आपने अपने बारे में कुछ परसेप्शन बताया और एक सोसाइटी के बाकी पार्ट्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपको प्रेज करा, आपके लाइक डिसलाइक बताए, तो आपने क्या करा? उसको भी अपनी आई के साथ, अपने सेल्फ कंसेप्ट के साथ मर्ज करा. फाइन. दिस परसेप्शन मे बी द सेम एज योर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन परसेप्शन. और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका खुद को लेके परसेप्शन था वो इससे काफ़ी अलग था. बट आपको क्या करना है यहाँ पे? द डिग्री ऑफ विच यू आर अवेयर ऑफ दिस पर्सन ऑफ द अदर्स एज वेल एज योर ओन परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ इंडिकेट्स दैट यू आर सेल्फ अवेयर. अगर आप अपने परसेप्शन के लिए जो आप अपने बारे में सोचते हैं और जो दूसरों लोगों ने आपके लिए क्या करा था? एवोल्यूशन करा था, दोनों को वैल्यूज़ देते हैं सिमिलर, इट मीन्स यू हैव अ सेल्फ अवेयरनेस. आप अपने आप को लेके क्या है? सेल्फ अवेयर है. अब ऑथेंटिसिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी मीन्स दैट योर बिहेवियरल एक्सप्रेशन आर कंसिस्टेंट विथ व्हाट यू वैल्यू एंड द वे यू फील एंड रिलेट योर इनर सेल्फ इमेज. आप क्या हैं और लोग आपको कैसे देखते हैं, जब आप दोनों के बीच में बैलेंस करके क्या करते हैं? उसे एक्सेप्ट करते हैं, वो सेल्फ अवेयरनेस कहलाती है. और यही क्या होगी? आपकी ऑथेंटिसिटी होगी. फाइन. सो इन अ सेम मैनर वी आर टॉकिंग अबाउट द काउंसलर. तो काउंसलर में भी ये क्वालिटी होना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना एक इफेक्टिव हेल्पर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेकेंड थिंग आता है हमारा पॉजिटिव रिगार्ड फॉर अदर्स. पॉजिटिव रिगार्ड हम हमेशा किसके लिए रखते हैं? अपने लिए रखते हैं. जब भी हम किसी ऐसी कंडीशंस में आ जाते हैं जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होती है, वहाँ पे हमेशा खुद को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, या फिर ऑलवेज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं? आई वर्ड यूज़ करते हैं. बट यहाँ पे क्या करना है? फॉर द इफेक्टिव रिलेशनशिप हमें दूसरों के व्यूज़ की क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है पॉजिटिव मैनर में. व्हेन यू आर स्पीकिंग गेट इनटू द हैबिट ऑफ यूजिंग आई. जैसे मैंने अभी आपको आई का एग्जाम दे, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड डांसर, आई एम दिस, आई एम दैट. ये किसको डिनोट कर रहा है? आपकी आई को डिनोट कर रहा है, आपके खुद के परसेप्शन को डिनोट कर रहा है. इन दिस वन मैसेज रादर देन यू मैसेज एन एग्जाम्पल. एन एग्जाम्पल दैट वुड बी आई अंडरस्टैंड रादर देन यू शुडेंट. देखो मैं कि आपसे कह रही यस आई अंडरस्टैंड इट, यू शुडेंट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं अपने लिए तो पॉजिटिव रिगार्ड रख रही हूँ और दूसरे वाले के लिए नहीं. तो हमने क्या करना है? बीइंग अ इफेक्टिव हेल्पर डेफिनेटली हमें क्या करना है? पॉजिटिव रिगार्ड दूसरों के लिए रखना है. येस आई एम अ गुड, यू आर नॉट. तो इसमें क्या हो रहा है? आपके लिए क्या हो रहा है? निगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है. तो हमें ऐसे नहीं बोलना है. हमें कैसे बोलना है? येस आई एम अ गुड. मैंने यहाँ पे आपको क्रिटिसाइज नहीं करा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ अपनी क्वालिटी बताई है. फाइन. रिस्पॉन्ड टू व्हाट द अदर पर्सन हैज सेड आफ्टर चेकिंग विथ हर और हिम. रिस्पॉन्ड करना है दूसरे पर्सन्स के साथ कि वो कैसे आपकी चीज़ों को क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूड कर रहे हैं या फिर चेकड कर रहे हैं. गिव द अदर पर्सन टू फ्रीडम टू शेयर फीलिंग और एनीथिंग व्हाट ही और शी वांट टू से टू यू. डोंट इंटरप्ट और अ कट इन. इफ़ यू वांट टू बी अ गुड हेल्पर तो आपको क्या करना है? दूसरों को भी अपने व्यूज़ देने का प्रॉपर चांस देना है, उनकी बातों को बीच में नहीं काटना है. तो ये भी क्या है? एक तरफ से पॉजिटिव रिगार्ड हो गया दूसरों के लिए. द फोर्थ वन, डोंट अज्यूम दैट द अदर पर्सन नोट व्हाट यू आर थिंकिंग. डोंट अज्यूम दैट व्हाट
you are thinking that are assumed by the other person. Express yourself according to the frame of the reference. I will give you example. That is a verbal exchange, the context of the verbal exchange taking place. आप कभी भी ये मत समझिएगा कि जो सामने वाला बैठा है उसे पता है कि आप क्या सोच रहे हो. आपको whenever you talk as a counselor, आपको कैसे करना है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रिगार्ड रखना है और ऐसा बिल्कुल भी अज्यूम्ड नहीं करना है कि व्हाट यू आर थिंकिंग दे नो अबाउट यू, द थिंकिंग व्हाट यू आर हैविंग. राइट. डोंट लेबल आइदर योरसेल्फ और द अदर पर्सन यू आर एन इंट्रोवर्ट. कभी भी किसी भी चीज़ को लेबल नहीं करना है. आप किसी से अगर ये कह देंगे यू आर एन इंट्रोवर्ट तो क्या हो जाएगा, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके अपने आप को परसेप्शन करने लग जाएगा. सो इट मे बी अ टिपिकल टास्क. ये भी एक टिपिकल टास्क हो सकता है. उसके बाद आता है हमारा एम्पैथी. एज यू नो वेरी वेल अबाउट द एम्पैथी. हमें सिंपैथी नहीं रखनी है. एम्पैथी मीन्स इन अ सेम कंडीशन आपको फील करनी है, बोलना नहीं है, आपको पिटी वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, आपको उसकी कंडीशन में खुद को रख के सोचना है, अपना थिंकिंग लेवल ब्रॉड करना है. ठीक है. इन सिंपैथी यू प्ले द पिटी, बट इन एम्पैथी हम क्या करते हैं, हमने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा था, इसमें चैप्टर 6 में 5th में हमने पढ़ा था. एम्पैथी में क्या करते हैं, सेम कंडीशन में खुद को फील करते हैं कि अगर इस कंडीशन में होते तो हमें क्या पेन फील होता है. तो दिस इज रिलेटेड टू अ एम्पैथी. तो वेन एवर यू विल गो इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी, सो यू विल एक्ट लाइक अ एम्पैथी, नॉट सिंपैथी. फाइन. पैराफ्रेसिंग, एज आई ऑलरेडी डिस्कस टू यू. पैराफ्रेसिंग क्या है कि दूसरे आपसे जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें हमको कितना उसका कम्युनिकेशन को हम अंडरस्टैंडिंग वैल्यू तक रख सकते हैं. फाइन. इसके बारे में हमने काफ़ी पहले पढ़ा था. चैप्टर 8 में ही कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा हुआ है डीपली. यू कैन टेक अ एग्जाम्पल फ्रॉम दैट वन सेक्शन ऑल्सो. सो ये जो हमने अभी बात करी, ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इफेक्टिव हेल्पर. हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करी. फर्स्ट इज द ऑथेंटिसिटी, सेकेंड वन इज अ पॉजिटिव रिगार्ड फॉर अदर्स, थर्ड वन इज अ एम्पैथी एंड फोर्थ वन इज अ पैराफ्रेसिंग. अकॉर्डिंग टू यू राइट डाउन दीज पॉइंट्स. आपको क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू अ गुड काउंसलर, अकॉर्डिंग टू अ गुड हेल्पर, व्हाट यू डू इन व्हाट यू विल डू इन दीज पॉइंट्स, 1 or 2 or 4, or write a paragraph only. Fine. But which one thing is necessary? I am too much embarrassed from your side when you are not watching my videos. So watch the videos, give me a comment and subscribe the channel. Good luck. Have a nice day.